Hello friends, welcome back to the channel. So today we start our revision with the previous year questions from the part 2 intelligence of unit 3 learner and the learning process. So let's start with the questions. So this is about me and this is our question number 1. Formula for the formulation of IQ. So you have to tell the formula to calculate the IQ. So answer is B. It is the ratio of mental age to the chronicle age into 100. Here chronicle age means your actual or the real age, whereas mental age means the age received on the psychological test. And IQ is the index of intelligence. Okay. Now next question number 2. Structure of intellect SOI model is evolved by. So answer is B. Guilford. SOI model was developed or evolved by the Guilfords. So, according to him, Guilford, he suggested that mind composed of three basic intellectual abilities, namely content, process, and product. Fine. So, answer is B. And Thurstone, he talks about the eight primary mental abilities. Spearmans gave the concept of two-factor theory S and G. S for the specific intelligence and G for the general intelligence. And Gardner's he gave the theory of multiple intelligence. Fine. Now question number 3. Theory of level 1 and level 2 intelligence is evolved by. Here answer is Jensen. Okay. So this theory of level 1 and level 2 was given by him, Jansen. Level 1 focus on the primary learning or the rote memory type things, और level 2 में क्या है, level 2 talks about or focus more on the abstract thinking, logical thinking, problem solving approach. Fine. And Guilford का, as we talked about him in the previous question, SOI जो model था, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल वाज गिवन बाय हिम गिलफोर्ड्स. ठीक है. एंड Cattle gave like in personality concept he gave the sufficient soul state personality, and in this intelligence he gave the concept of fluid and crystallized intelligence. Okay. Now question number 4. In the chronicle order which theory of intelligence is latest? आपको बताना है कौन सा latest है इनमें से. Okay, so two-factor theory was given by Spearman in 1904 and revised in the 1927. So ये Spearman's की two-factor theory थी, S and G वाली 1904 में develop हुई थी. Group factor theory was given by the Thurston in 1938 or 37, and this theory of multiple intelligence was given by the Gardners in the 1983, and this multiple factor theory um, was given by the Thorndike. Yes, Thorndike. So here answer is C. Theory of multiple intelligence given by the Gardner in 1983. Now question number 5. Who developed the concept of group factors in intelligence? तो ये concept किसने दिया था group factors का intelligence में? Bert. Okay. Now question number 6. In the measurement of which of the following types of intelligence an optimal age level is considered pertinent? So here answer is D. Cognitive intelligence. Direct basic question, no need of explanation. Now question number 7. Which of the following intelligence does not stop increasing with the age of the person? So स्टेटमेंट को अच्छे से देखना. डज नॉट स्टॉप, इनमें से कौन सी है जो एज के साथ स्टॉप नहीं होती है, कौन सी ऐसी इंटेलिजेंस है? तो ऑफकोर्स आंसर इज ए. एकेडमिक इंटेलिजेंस आपकी स्टॉप नहीं होती है विद द एज ऑफ पर्सन. नॉलेज एड ऑन होती रहती है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डिपेंड्स अपॉन दी. जो प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी एबिलिटी है वो किस चीज पे डिपेंड करते हैं? ग्रोथ इन हाइट एंड वेट, डेवलपमेंट ऑफ वोकैबुलरी, development of thinking and reasoning, development in size and shape. Of course answer is C. Development of thinking and reasoning.
ठीक है, जितनी ज़्यादा आप एब्स्ट्रैक्ट सोचेंगे, जितना ज़्यादा आपके थिंकिंग प्रोसेस होगा एंड जितनी ज़्यादा आपकी लॉजिकल रीजनिंग होगी, उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इंक्रीज करेगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, लिस्ट, ये आपको मैच करनी है, तो लिस्ट दे रखे हैं थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस एंड प्रोपोनेंट्स ऑफ थ्योरीज की, कौन सी थ्योरी किसने दी है। सो ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, hierarchical structure theory, structure of intellect model, emotional intelligence theory. Okay, structure of intellect model, SOI model was given by Guilford. ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी, गोल्डमैन। एंड hierarchical structure theory was given by the वर्नर। एंड ग्रुप फैक्टर थ्योरी, देखो अब दो ऑप्शन बचे हैं, बर्ट एंड स्पेयरमैन। स्पेयरमैन की थी ग्रुप फैक्टर थ्योरी एस एंड जी, बट यहाँ पे अगर आप इनको ऑप्शंस को अच्छे से देखोगे तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यही बर्ट आएगा। बर्ट वैसे भी क्यों आएगा, बिकॉज देखो इसमें एस और जी हमें पता है, लेकिन ये जो कंसेप्ट था ना अभी हमने पीछे जो पढ़ा है ग्रुप फैक्टर थ्योरी का, वो किसने दिया है, बर्ट ने। तो यहाँ पे आप इन कोड्स में से जब आप मैच करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 4, यस ए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अगेन आपको मैच करनी है दो लिस्ट, यहाँ पे थ्योरीज गिवन है, यहाँ पे उनका कंसेप्ट गिवन है। देखो गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी, ये किस चीज के बारे में, इनका जो थ्योरी का कंसेप्ट था वो क्या था, मेंटल एबिलिटीज पे था कि माइंड में कौन से तीन एबिलिटीज कैन बी एक्सप्लेन थ्रू द बेसिक मेंटल प्रोसेस की, जो भी आपकी एबिलिटीज है वो किसके थ्रू आप एक्सप्लेन कर सकते हो, आपका जो बेसिक मेंटल प्रोसेस है और जो स्पेसिफिक कंटेंट है प्लस जो प्रोडक्ट जो एंड रिजल्ट आएगा वो। तो इसका एक फिफ्थ, वर्णन हिरार्किकल स्ट्रक्चर थ्योरी, ये बात इसमें कंसेप्ट कौन सा है, ये जर्नल ब्रॉड एंड स्पेसिफिक फैक्टर्स लिंक्ड विद एबिलिटी। गार्डनर्स मल्टीपल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी किस चीज के बारे में बात करता है, ऑफ कोर्स इट टॉक्स अबाउट द एबिलिटीज कैन बी नर्चर्ड एंड डेवलप्ड। देखो आप इन थ्योरीज को जब पढ़ोगे तो जो इनके बेसिक पॉइंट्स है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। ओके, and this last Daniel Goleman's emotional intelligence theory, of course the concept is associative thinking and self motivation. Fine, so अभी कोड्स में से इसका आंसर क्या रहेगा, ए का 5, बी का 3, सी का 4 एंड दिस ए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 इन द, ओके, ये आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, कुछ जर्नल कंक्लूजन्स दे रखे हैं विच आर बेस्ड ऑन द इंटेलिजेंस टेस्टिंग। अब आपको इनमें से वो स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है विच रिलेट्स टू द एकेडमिक इंटेलिजेंस टेस्टिंग। सो ये आप स्टेटमेंट अच्छे से रीड करेंगे तो आंसर इज बी, 2, 3 एंड 4। ओके, answer is B. As one advances in age, intelligence also advances in terms of functions. The rate of mental development changes, and empathy forms an important component of intelligence. Fine. Moving to the next question, question number 12. Choose the appropriate sequence of steps involved in the problem solving. ओके, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स बताने हैं। देखो सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग में फर्स्ट स्टेप होता है आपका, आपकी प्रॉब्लम का पता होना चाहिए, सो कन्फ्रंटिंग द प्रॉब्लम। सेकंड स्टेप इज, जब आपको प्रॉब्लम का पता लग गया तो यू हैव टू formulate the possible or the tentative solution, means formulating possible solution of hypothesis. थर्ड स्टेप क्या होता है, collection of evidences, and then fourth step would be test the possible solutions, जो आपने solution निकाले उनको test करना, then you arrive at the conclusion in the fifth step, and last step, sixth step is evaluating the sustainability of solutions. Fine, so answer here is C. Now, question number 13. Assertion and reason type question. Read the statement very carefully. All gifted children are creative. Reason is creativity is not necessarily related to giftedness. I think answer is A. कि दोनों statements true हैं, but R is not the correct reason of A. Now question 14. Okay, इस question में क्या है, आपको कुछ theories दे रखे हैं
थ्योरीज की लिस्ट दे रखी है। इन थ्योरीज को आपको सीक्वेंस में ऑर्डर करना है, सीक्वेंस ऑफ हिस्टोरिक फॉर्मुलेशन, जैसे जैसे वो बनी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको सीक्वेंस सेट करना है। तो कौन कौन सी थ्योरी है? बर्ड्स ग्रोथ फैक्टर थ्योरी, स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी, गिलफोर्ड एसओआई, डेनियल गोलमैन्स, जोहर एंड मार्शल्स थ्योरी। तो इनको जब आप अच्छे से ऑप्शंस को रीड करेंगे तो आंसर इज बी। Now 15th, which one of the following statements is correct? आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। A gifted child may be creative also. Yes, हो सकते हैं करेक्ट। Creativity implies giftedness. Giftedness and creativity are related concepts. Creativity has nothing to do with the giftedness. Of course, answer is A. A gifted child may be creative. Gifted child creative भी तो हो सकता है। Now 16th question. In explaining the development of problem solving capability, which one of the combination is most appropriate? आपको बताना है कि problem solving capability जो है या फिर जो ability है इसकी development के लिए इनमें से कौन सा combination ज़्यादा appropriate है? Okay, so answer is D. Convergent thinking skills, divergent thinking skills, and seeing of the relation between means and end. Means और and के बीच में relation देखना आपकी convergent thinking and divergent thinking skills. ये जो चीजें हैं, ये जो तीन कॉम्बिनेशन है इन तीन चीजों का, ये किस चीज में हेल्प करते हैं आपकी? इन डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी। Now question 17th, which one of the following determinants of individual difference will not contribute to the development of emotional intelligence in Daniel Goleman's formulation even after the age of 25? So इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो डेनियल गोलमन की जो थ्योरी थी उसमें इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि contribute नहीं करता है in the development of emotional intelligence after the age of 25. So here answer is educational exposure. Now question 18, while measuring the intelligence, which test assumes up to a certain chronicle age intelligence reaches a peak? Very easy question है, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। आंसर इज ए। जो वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट होते हैं ये टेस्ट में अजम्पशन ली जाती है दैट अप टू अ सर्टेन क्रॉनिकल एज मींस रियल और द एक्चुअल एज जो आपकी एक्चुअल में जो एज है। इन टेस्ट में अजम्पशन ली जाते हैं कि एक पर्टिकुलर आपकी एज में कि इस एज में ये वाले इंटेलिजेंस रीच कर गई है इसके पीक पे। ओके, now question 19, which of the following type of intelligence reaches an optimal development ceiling? Emotional intelligence, social, cognitive, spiritual. Answer is C. Cognitive intelligence. ठीक है जी। Now okay, 20th question. ये आपके टाइप दे रखी है इंटेलिजेंस की, यहाँ पे इम्फेसाइज मतलब कौन सा इंटेलिजेंस किस पे फोकस करता है वो आपको मैच करना है। कॉग्निटिव इंटेलिजेंस, इमोशनल, स्पिरिचुअल, कल्चरल, यूनिटिव, सीरियल, एसोसिएटिव, सिंबॉलिक, ट्रांस सिचुएशनल थिंकिंग। ओके, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस देखो एसोसिएटिव थिंकिंग पे फोकस करता है, इमोशनल ऑफ कोर्स सिंबॉलिक पे करेगा, स्पिरिचुअल सीरियल थिंकिंग पे, एंड कल्चरल इज यूनिटिव। सो आंसर यहाँ पे क्या होगा? एक का था 3, ओके, इमोशनल का था 4 एंड 2 एंड देन 1। ओके, आंसर इज सी। नाउ 21st क्वेश्चन, creativeness and originality are processes of arranging well-known facts and principles in the new relationship so that whatever is intended may be achieved more effectively. In other words, this means. So यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है आपको बताना है कि इसको आप और किस तरह बता सकते हो। ये जो आपके 4 ऑप्शंस दे रखा आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ज़्यादा अच्छे से अप्रोप्रिएटली डिफाइन करती हैं जो आपको स्टेटमेंट गिवन है उसके लिए। ओके, सो
बेसिकली जो आपका ये क्वेश्चन आपके चेक कर रहा है आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी। तो चलो देखते हैं। ए ऑप्शन इज न्यू नॉलेज हैज बीन अप्लाइड इन अ ट्रेडिशनल वे टू अचीव अ पर्पस, कॉमन नॉलेज हैज बीन अप्लाइड इन अ वे टू अचीव अ न्यू पर्पस, नो नॉलेज हैज बीन अप्लाइड इन अ ट्रेडिशनल वे टू अचीव अ पर्पस, न्यू नॉलेज हैज बीन अप्लाइड इन अ ट्रेडिशनल existing way to achieve a purpose. Of course here answer should be A कि नई नॉलेज हैज बीन अप्लाइड इन अ ट्रेडिशनल वे टू अचीव अ पर्पस। देखो बी इसका आंसर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इन्होंने पहले बात कर दी कॉमन नॉलेज की, जबकि क्वेश्चन में इसमें स्टेटमेंट में बात की गई है क्रिएटिवनेस एंड ओरिजिनलिटी, ओरिजिनलपन की, ठीक है, आपकी प्रिमिटिव साइड की। तो कॉमन नॉलेज तो हो नहीं सकती है, तो सी ऑप्शन तो इसका हो ही नहीं सकता, सॉरी बी ऑप्शन नहीं हो सकता है। सी ऑप्शन में नॉन नॉलेज की बात की गई, अगर नॉन नॉलेज होती तो क्यों इसको क्रिएटिवनेस और क्यों इसको ओरिजिनल बोला जाता, तो ये सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। डी ऑप्शन में बोला गया है कि न्यू नॉलेज, चलो ठीक है, न्यू नॉलेज हैज बीन अप्लाइड इन अ ट्रेडिशनल एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से है, एग्जिस्टिंग वे टू अचीव अ पर्पस, नो ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर इज ए। Now question 22. Brainstorming procedures are helpful especially for which category of children? यहाँ पे आपको बताना है कि जो ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसीजर है वो कौन से बच्चों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है होगा, ठीक है। गिफ्टेड चिल्ड्रन, बैकवर्ड चिल्ड्रन, क्रिएटिव चिल्ड्रन, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। देखिए इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब पता होना चाहिए। एजुकेशनल साइकोलॉजी में ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, एक आपकी टेक्निक है, ग्रुप टेक्निक है, जिसमें कि we arrive at the conclusion or the solution of the problem of a specific problem, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होना चाहिए, आंसर इसमें गिफ्टेड चिल्ड्रन नहीं हो सकता, बैकवर्ड चिल्ड्रन। जो ब्रेनस्टॉर्मिंग ग्रुप टेक्निक है वो किनको ज्यादा हेल्प करेगी, बैकवर्ड चिल्ड्रन को, ओके। So yes, okay friends, we are done with all the previous year questions from the intelligence topic. Hope you find this video relevant and useful. Do like, share and subscribe the channel, and please feel free to comment down your queries related to your exam and this video. Okay, thank you guys. Thank you very much. Hope you like this video.